Okay, good afternoon once again to all of you. So हम इस सेशन को it's 1:20 by my clock. How are we going to structure this session is quickly मैं 3 से 4 मिनट में I will introduce the company. जिनको कंपनी के बारे में नहीं पता है स्किल एज के बारे में, पर आई एम श्योर most of you are aware of skill edge now because we are doing our 5th session. Yeah, Ranbir, I'll unmute you. Yeah. I'll do 2-3 minutes of quick introduction of the company. By 126, 4 minutes के बाद we will dive directly into full stack development होता क्या है. आज इसके बारे में आप लोग सब कुछ सीखोगे. फुल स्टैक क्या होता है, इंडस्ट्री क्या मांग रही है प्रेशर से, इसको कैसे सीखा जाता है, हाउ डू यू डेवलप दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, जॉब्स एंड स्किल्स क्या है, सैलरी रेंज क्या होते हैं, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ पॉइंट्स. एंड द फाइनल दैट विल टेक 30-35 minutes, and finally if you have any questions we will answer that. All right, with this let me unmute Pranbir sir first and then start the session. All right. A quick introduction to the company. I'm sure all of you by now know about Skill Edge, but quickly introducing the company once again. We are an EdTech and we make graduates, diploma, engineering and postgraduates employment ready. So we make the students pursuing diploma, graduation, engineering and post-graduation employment ready. And we specialize in non-IIT and non-NIT colleges. We specialize in that. We understand students from those colleges, what it takes for a student to learn a content and become employment ready. And how are we doing this? How are we different from edX, Coursera, Udemy? We are different because we are operating in 3 fundamental ways. Every student in Skill Edge, every course in Skill Edge goes through 3 fundamental ways. Number 1, knowledge. I would like all of you to please shut off the video. That would be really great. All of you, please close your video. Let only Pranbir and I have the video. Will help us to save the bandwidth. All right. So every student goes through 3 things in Skill Edge in every course. Number 1, knowledge. What kind of knowledge? Only job-focused content. And that too, given in a language which is easy to understand. जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं. That is the language that we are talking about, the knowledge we are talking about. Second, once you get the knowledge, it is important to practice the knowledge in real-time industry exercises. Without practice, how can you convert a knowledge into a skill? But the practice cannot be random. It has to be real-time, in the form of interview questions, in the form of tutorials, in the form of quizzes, in the form of live projects. And once you are doing the practice, that's the second step. It is important to be mentored by industry mentors. So there has to be faculty members who are holding your hand to tell you what is right, what is wrong. How do you answer a question in an interview? What is the path that you need to take? Every student in Skill Edge gets 3 faculty members. In this way, a student gets a degree from the college and gets the skill from Skill Edge. So degree from the college, skill from Skill Edge, and the student is ready to crack the interview and day 1 job ready. This is how we are creating the ecosystem and the environment. And I think with this way, we have done 6,500 hours of program, impacted more than 20,000 students in 80 plus colleges across India. We have been awarded, as sir said, Best Startup Award at IIT Kharagpur,
February 2020, and few more awards to give. And I think that's the encouragement that we have got from the environment. And yes, the love and affection of so many students across India that are helping, that is helping us to move ahead and create impact in everybody's life as far as employment readiness is concerned. Some of the mentors that we have in the system, and I'm sure many of you have seen this slide before, and you know me, so I'm not going to describe myself. As sir mentioned, yes, I'm a passionate teacher by heart, and I love interacting with students and mentoring them, which I have done over the last 17 years by interacting with more than 10 lakh students. All of you can start following Skill Edge on our social media platform and can follow the YouTube video also, YouTube channel also. Because ये सारी बातें जो मैं आज हम सुनेंगे, आप जो सुनोगे, आप जो समझोगे, ये सारी चीजें आप कंटिन्यूअसली सुन सकते हो अगर आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हो. I think I've introduced Pranbir, but let me quickly once again say a few words about Pranbir. As I said, he is a technology geek. He's a technocrat, and he comes with that mindset कि technology को आसान कैसे किया जाए. It is not about what kind of language you learn. It's about आप अपने दिमाग में algorithm कैसे develop करते हो. That is what Pranbir is good at. And I think that has made him clear the Google coding challenge also. Right. So once again, thank you, Pranbir, for joining this session and taking out time for sharing your information and making the technology learning so easy for our students. Thanks, Rohit. Thanks all the students. All right, let's go ahead. Thank you, Pranbir. Today's learning, I told you around 127, 126, we will start with the learning. So today's learning, what is full stack to begin with? What is the future? Why companies need full stack developer? What is the stack that we are looking forward to? How full stack learning is beneficial to the company? What is the advantage? Why it's so much in demand? What are the job roles? And yes, how can you prepare the mindset to learn full stack? Whether you are in second year, third year, or final year of engineering, ideally third year and final year of engineering, this is absolutely important for you if you want to look into the web development side in your career path. Let's go ahead. Let's ask Pranbir the first question. Pranbir, what is full stack? What is the, what is industry saying when we say a full stack developer? Can you please highlight? Sure. So, अगर short में बोले तो full stack developer is a person जिसको back end development भी आते हैं, front end development और database का development भी आते हैं. But अगर थोड़ा broadly बोले तो क्या होता है, किसी भी web app बोलते हैं या किसी भी industry level का application के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें core जो है 3 components रहते हैं. ठीक है, एक तो डेफिनेटली एक डेटाबेस होगा जहाँ पे सारे के सारे डेटा वगैरह हम लोग स्टोर करने वाले हैं. एक बैकएंड सर्विस होंगे जो बेसिकली एक मिडिल वेयर काइंड ऑफ, जो डेटाबेस के साथ भी बात करेंगे और डेटा जो है लेके फ्रंट एंड को देंगे. और एक है फ्रंट एंड जो बेसिकली हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक का जो पेज हमें जो दिख रहा है वो फ्रंट एंड है और वो पीछे बहुत सारे बैकएंड एपीआई को कॉल करते हैं जो डेटाबेस से डेटा लाके देते हैं और पॉपुलेट करते हैं. तो जिस डेवलपर को इन तीनों का नॉलेज है, he is a full stack developer. All right. So you are saying the back end, the front end, and the the connection between the back end and the front end. Correct? Yeah. That is basically a full stack developer, right? Right. So if you can highlight the point which is mentioned over here, in addition to mastering, what does this mean? Okay. So अभी अगर देखते कि फ्रंट एंड की अगर बात करते तो पहले क्या था कि पहले सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसके बाद आ गया jQuery लाइब्रेरी. अभी डे बाय डे जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन जो बहुत ही पॉपुलर है
और इसमें इसके दौरान क्या होगा कि बहुत सारे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क आ गए, फॉर एग्जांपल एंगुलर, व्यू, रिएक्ट, ठीक है। अब सेम तरीके से बैकएंड लैंग्वेज में भी बहुत पहले क्या था, सिर्फ पीएचपी जो जब तैयार हुआ था, ठीक है, वेब के लिए तब पीएचपी ही था। उसके बाद धीरे धीरे फील्ड में जावा आ गए, ठीक है, फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे लैंग्वेज आ गए, एएसपी आ गए, पाइथन आ गए, नोड आ गए, ठीक है। सेम डेटाबेस में भी जब पहले आरडीबीएमएस का ही सिर्फ कंसेप्ट था, तो फिर ओरेकल वालों ने आगे फिर माई एसक्यूएल बनाए, सीक्वल सर्वर बनाए, मोंगोडीबी जो नया कंसेप्ट आ गया कि नो सीक्वल डेटाबेस, जिसका बहुत सारे बेनिफिट्स है, कुछ कॉन्स भी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डेटाबेस भी बन गए। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, अगर मैं बहुत पहले की बात करता हूँ, जिस टाइम पे था ही सिर्फ कुछ ही टेक्नोलॉजी, तो ऐसा था कि किसी को अगर अपने करियर में एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे अगर रीच करना है, तो बस उसको मालूम कि सिर्फ इतना सा ही टेक्नोलॉजी है, तो मैं सीख लिया, हो गया। बट अभी के जमाने में क्या है कि इतने सारे टेक्नोलॉजीज है, अब किसी एक ह्यूमन के लिए इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि ये सारे के सारे टेक्नोलॉजीज जाने, है ना। तो प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पर है कि स्पेशली कौन से पार्ट को सीखे ताकि वो अपने करियर के उस डेस्टिनेशन को रीच कर पाए। राइट, मेक सेंस। सो आप जो कह रहे हो प्राणवीर, जस्ट टू आपकी बातों को पैराफ्रेज करके मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल स्टैक डेवलपर का मतलब a person who can develop both client, which means front end, back end, and the connection between front end and back end. इन तीनों एस्पेक्ट को जो समझता है उसको फुल स्टैक, समझ के जो अप्लाई करता है उसको फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। और Right. आपने फिर ब्राउजर, सर्वर और डेटाबेस लेवल पे ये बात बोली कि इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, it's literally impossible for anybody to learn all these technologies, but what is important in today's time is to know which kind of technology is most important and desirable for a company, so that an engineer who is a fresher can start learning these technologies during the academic year, perform in those technologies so that the person becomes employment ready. Am I clear in saying this? Yes, Rohit. All right, thank you. Let's go to the next question. So this is, I think, Pranbir, is a list of technologies that you are talking about. I think it's an extension of the previous slide, right? Yeah, yes. So you can see like these are basically some of the technologies, okay, but this is not the complete. Okay, there are more. So इतने सारे टेक्नोलॉजीज जिस है यहाँ पर ऑलरेडी, तो सोच सकते हो कि ये कंपटीशन और चूज करना कितना टफ है अभी के जमाने में, कौन सा वाला मैं सीखूं। And when we are saying that technology is the main thing in every company today, whether Right. it's an edtech company, food tech company, whether it's a logitech company, whether it's a pharma tech company, insure tech company, everywhere, मतलब because of COVID-19 recession आया, लेकिन technology jobs कम नहीं हुए। Yes. Technology jobs are on the high. The point is an engineer must know कि किस तरह की टेक्नोलॉजी इन डिमांड है ताकि वो उस चीज को सीख पाए। Because, correct me if I'm wrong, the regular trend is to again understand the same logic of C, C++, Java. I think that's the regular trend where I have seen most of the students, when I talk about the non-IITs and the non-NITs, academically they're still somewhere learning only C, C++, Java. But the point is that is not helping them to move into the tech-based companies. Or they may move eventually. But if somebody wants to move immediately after engineering, which is what the tier 1 colleges, students from tier 1 colleges do, then they have to go beyond that mindset, correct? Right, yes. What is your thought in that? What is your thought? Yes, definitely. क्योंकि C, C++ में भी करियर है, ठीक है, बट द थिंग इज कि कितने कंपनी C, C++ अपने प्रोडक्ट में यूज करने वाले हैं, राइट? अभी जितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मैं ऑलमोस्ट पॉसिबल है कि सबको ही C, C++ आता है, क्योंकि वो ही हमारा मदर लैंग्वेज काइंड ऑफ, ठीक है, मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम लोग हर एक अपना प्रोग्रामिंग के जो थॉट्स है बेसिकली उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट? तो थिंग इज कि सबको ही C, C++ आता है, बट कितने लोगों को जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी से वो कितने लोगों को आते हैं, ओके? अब कंपनीज जो है, और C, C++ का कंपनीज भी कम है। हम फ्यूचर एक स्लाइड में भी मैं ये मेंशन किया है, मे बी मैं दिखाऊंगा कि कंपैरिजन जो है ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज, जहां पे C++ की
जॉब मैंने देखा था 65 है, उसी जगह पे पाइथन डेवलपर्स विद फुल स्टैक नॉलेज, इस सब का जॉब नंबर ऑफ ओपनिंग अराउंड 1065 है. सो वी कैन सी द डिफरेंस. और ये सिर्फ पुणे में, ठीक है, मैं बाकी एरिया पे मैंने सर्च नहीं किया. तो वी कैन अंडरस्टैंड बेसिकली कि अगर कोई इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और इंस्टेंटली उसको जॉब चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी चाहते हैं कि वो उसको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज आना चाहिए, क्योंकि वही वो कंपनी यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. Correct. Absolute makes sense, Pranbir. So which brings to a next question, very pertinent question. ये stack होता क्या है? हम full stack. Stack का मतलब हम एक layer by layer बोलते हैं. That is called stack. So what is this stack introduction, Pranbir? If you can highlight. Okay. So basically stack is like some packages. Okay. कि मुझे फ्रंट एंड में ये टेक्नोलॉजीज, बैक एंड के लिए ये टेक्नोलॉजीज और डेटाबेस के लिए ये टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इस टाइप से. ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ एक ये ऐसा कुछ पैकेजेस है जिसको हम लोग स्टैक बोलते हैं. तो फर्स्ट जो एक पॉपुलर स्टैक जो बहुत ही पुराने हैं, फर्स्ट है कि लैम्प स्टैक, एल फॉर लिनक्स, जहाँ पे वो बेसिकली वो सर्वर नहीं, बेसिकली द प्लेटफॉर्म. देन ए फॉर अपाची, बेसिकली जो सर्वर है हमारा. MySQL यूज्ड फॉर द डेटाबेस एंड PHP फॉर द बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन. और PHP ही उनके कुछ टेम्पलेटिंग इंजन बोल के होते हैं जो यूज करके वो HTML को बनाते हैं. तो ये है लैम्प स्टैक. सेम वी हैव लेम्प स्टैक, LEMP. यहाँ पर पहले तो एक ही जगह पे अपाची था, बट यहाँ पर जो है कि अपाची की जगह पर Nginx है, बट यहाँ पे इसको लैम्प स्टैक बोलते, ई बोलते. इसको लिए रीजन है कि पहले Nginx यूज को उसको Nginx बोलते, ENGINX ऐसे बोलते थे, तो इसलिए ई डाला जाता है इसमें, लैम्प स्टैक. फिर है मीन स्टैक और मर्न स्टैक, जहाँ पे डेटाबेस के लिए MongoDB, E फॉर Express.js, A फॉर Angular एंड N फॉर Node.js. ये है मीन स्टैक. Angular फ्रंट एंड, Node.js बैक एंड टेक्नोलॉजी, Express इज द सर्वर, MongoDB इज द डेटाबेस. सेम मर्न स्टैक सिर्फ Angular के जगह पे React.js. देन है Django स्टैक, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए, Python backend language, and Django is basically the framework or the server, we can say, and MySQL for the database. And then we have Ruby on Rails. So ये Ruby language का एक framework है, Ruby on Rails. और SQLite database, तो ये database जो Python से बना हुआ है by the way. और JavaScript for the front end. So ये सारे हैं stacks. इसके अलावा भी बहुत सारे stacks है. मेन रीजन है कि मैं एक स्टैक से आधा लिया, दूसरे स्टैक से आधा ले, ये क्या मैं कर सकता हूं, ये नॉलेज जब पता चल जाएगा, किसी भी स्टैक पे आप काम कर सकते हो, किसी भी टेक्नोलॉजी पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. All right. So the point over there is what you're saying is stacks बहुत सारे हैं, but it is important to identify the stack जो कि इंडस्ट्री को आज चाहिए, and you prepare accordingly. फ्रंट एंड में क्या चाहिए, बैक एंड में क्या चाहिए, और डेटाबेस. तो अगर वो स्टैक समझ में आ जाए तो वर्क ऑन दैट स्टैक. उस स्टैक में जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको सीखो और अपने आप को तैयार करो. Am I right in saying this? राइट. Got it. और ऐसा नहीं कि स्टैक में जो 4 टेक्नोलॉजीज है, सिर्फ ये 4 टेक्नोलॉजीज ही एक साथ काम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फेसबुक का बात कर लेता हूँ. फेसबुक के बैकएंड में सिर्फ एक टेक्नोलॉजी यूज नहीं है. ठीक है, फेसबुक के कुछ पार्ट में Node.js यूज हुआ है, कुछ पार्ट में Python यूज हुआ है. ठीक है, उसका भी एक इंटरनल रिकमेंडेशन सिस्टम है. ठीक है, तो उस पार्ट में Python यूज हुआ है. ठीक है, और एक चीज में भी हम लोगों को देखने को मिलेगी कि अगर हम लोग लॉग आउट पे क्लिक करते हैं फेसबुक के, तो दिखाते हैं logout.php. मतलब ये है कि ये लोग PHP भी यूज करते हैं, बट उसका मॉडिफाइड वर्जन जो उन लोगों ने खुद डेवलप किया, वो हमारे नॉर्मल PHP नहीं है. ठीक है, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज होता है, और सब जगह पे सेम. फॉर नेटफ्लिक्स बोलते हैं या फिर गूगल भी बोलते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करते. तो ये कंसेप्ट रहना इंपॉर्टेंट है कि मैं 3-4 टेक्नोलॉजीज को एक साथ कैसे यूज करूं, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजीज का खुद का प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट भी है. Makes sense. Guys, are you all getting it? Can I get a quick yes? Is it an interesting information that is coming to you, and आपके अंदर वो धीरे-धीरे वो mindset डेवलप हो गया? ये तो मैं बोल नहीं सकता, it's just the beginning, but are you able to grasp the content? Can I get a quick yes, no, maybe? समझ में आ रही है क्या चीजें अभी तक? All of you are computer engineers, IT engineers, third year, second year, final year. चीजें समझ में आ रही है क्या? इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लग रही है क्या?
All right, few people have replied. Thank you for those who have replied. मैं बार बार ये कहूंगा, जो लोग सुन रहे हैं, it is important to reply. That's how you learn. Otherwise, there is no fun of just listening one thing and you're not. When you reply, that means you're not only learning, but you're also registering. Right, Pranbir? This brings to another question, Pranbir, which is the most popular stack, right? That somebody should look for to learn and apply. Okay. Please, Pranbir, share this. Sure. So जो स्टैक हम लोगों ने चूज किया वो थोड़ा सा अलग है. Okay, it's not the conventional one. So first thing is the Django stack, जिसमें हम लोग क्या करने वाले कि बैक एंड में पाइथन का पावर यूज करने वाले और उसके Django फ्रेमवर्क को यूज करने वाले. तो बाय द वे ये फ्रेमवर्क यूज करके कौन से सॉफ्टवेयर बनाया जा चुका है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आ जाएंगे कि ये कितना पावरफुल है. हम लोग जो नेटफ्लिक्स, सबको ही मालूम होगा कि ये क्या है, तो वो Django से बना हुआ है. फिर इंस्टाग्राम Django से बना हुआ है. फिर यूट्यूब का भी बहुत सारा पार्ट Django से बना हुआ है. नासा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है Django से बना हुआ है. नेशनल जियोग्राफिक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है Django से बना हुआ है. तो समझ सकते हैं कि इसका पावर क्या है. इसका मेन रीजन है पाइथन, एक्चुअली उस पाइथन का पावर. ओके, और जिसमें MySQL होंगे बैकएंड में. ये MySQL, PostgreSQL हम सब कुछ ट्राई करने वाले हैं. बेसिक जो है सबका सेम है, तो कोर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए तो यूज होंगे, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करने वाले हैं. अगर हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि नॉलेज ऑफ रिएक्ट, तो ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो बहुत ही पॉपुलर है. और फ्रंट कौन से जगह पे फ्रंट एंड में ये यूज हुआ है, पेपल, वहां पे फ्रंट एंड में ये यूज हुआ है. फिर फेसबुक, क्योंकि इसका इन्वेंटर भी फेसबुक ही है, तो इसके फ्रंट एंड में फेसबुक. इंस्टाग्राम के फ्रंट पार्ट जो है इसमें रिएक्ट यूज हुआ है. अगर प्रॉपरली अगर देखे, ये लोग Django के पावर को यूज कर रहे हैं बैकएंड को बनाने के लिए, और फ्रंट एंड को बनाने के लिए फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के पावर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्ट. ये चीजें हम लोग सीखेंगे. एक्सक्यूज मी. सो कैसे दो टेक्नोलॉजी, दो डिफरेंट, क्योंकि रिएक्ट जो मैंने मेंशन किया था दूसरे स्टैक में कि मर्न और मीन स्टैक, तो मैं वहां से मर्न स्टैक में मैंने मेंशन किया था, तो मैं वहां से रिएक्ट को उठा लाया, जो एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगा. और इसके थ्रू क्या होगा ना, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे कि बैकएंड टेक्नोलॉजी का कोर कांसेप्ट क्या है, उसके साथ मैं किसी भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकता हूं. क्योंकि Django का खुद का भी टेम्पलेटिंग इंजन है, वो भी सीखने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि Django स्टैक मेंशन किया है. उसके ऊपर की दूसरा थर्ड पार्टी किसी भी, क्योंकि काल हो सकता है रिएक्ट के जगह कुछ और आ गया फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज. प्रॉब्लम क्या होगा, जिन लोगों को सिर्फ स्टैक के मालूम है कि भाई ये स्टैक में होता है, ये ऐसे काम करते हैं, वो लोग फंस जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि भाई थर्ड पार्टी इस चीज को कैसे यूज करना है. इसलिए मैंने यहाँ पर रिएक्ट को डाला है, ताकि वो जो कोर कंसेप्ट है, इस टेक्नोलॉजी का आधा लिया, इस टेक्नोलॉजी का आधा लिया, दोनों को कैसे काम कर सकते हैं, इसके में मैंने रिएक्ट को रखा है. नॉलेज ऑफ लिनक्स, ये मुझे लगा, दिखा मुझे कि बहुत सारे स्टूडेंट को होता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर विंडोज यूज करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का लिनक्स का नॉलेज बहुत ही कम है, तो इसलिए मैंने लिनक्स को भी यहाँ पर रखा. इसके साथ हम लोग SCV सीखने वाले हैं, सोर्स कोड वर्जनिंग. ये है कि हम लोग कॉलेज में जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैंने कुछ बना दिया, अगर मैं 2 मेंबर्स या 3 मेंबर्स मिलके बना रहे, तो पेन ड्राइव से कोड शेयर कर दिया कि ये लो भाई मेरा कोड, वो अपना कोड दे दिया, 1 फाइल 2 फाइल मैं अपने में चेंज कर दिए. बट जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहां पर 50-100 मेंबर जो वो बन के बनाते हैं चीजों को, तो 50 लोगों के पास तो कोई पेन ड्राइव लेके नहीं दौड़ने वाले. ठीक है, तो सोर्स कोड का वर्जनिंग कैसे करना है, कि मैं एक पर्टिकुलर पार्ट में कोड लिख रहा हूँ, सेम फाइल पे मेरा कलीग भी कोड लिख रहा है, तो उसका वो कोड लिख रहा है ये वाले पार्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली एक साथ मर्ज हो जाना चाहिए दोनों के कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली. और ये भी हो सकता है कि मैंने कोड वो रन किया, मुझे लगा अरे ये तो गलत लॉजिक है, पहला वाला जो लॉजिक था वो करेक्ट था, अब रिवर्ट कैसे कर जाए, कंट्रोल जेड में कैसे पहुंचोगे कि कल आपने कुछ कोड किया था, उसके बाद कंप्यूटर शटडाउन वगैरह कर लिया, आज जब खोले 2-4 लाइन लिखे, फिर पता चला कि अरे वो तो कल का लॉजिक तो करेक्ट था, कैसे करोगे. कंट्रोल जेड पॉसिबल नहीं है इस कार्य पर. तो सोर्स कोड को कैसे वर्जनिंग कर सकते हैं कि जब भी मुझे चाहिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं रीच हो जाऊं, फिर मैं मर्ज कर दूं कि नहीं यही कोड सबके लिए चाहिए, सब पे चेंज हो जाए. तो ये एक एंटरप्राइज ग्रेड में एक टीम पे कैसे काम करना, वो सब सीखेंगे हम लोग. फिर है कि डिप्लॉयमेंट, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ये मालूम है कि मैंने एक, मान लो मैं नेटफ्लिक्स का एक मैंने क्लोन बनाया, ठीक है, अब इसको डिप्लॉय कहाँ पर करेंगे, कैसे मैं इसको डिप्लॉय करूंगा ताकि मेरे अलावा बाकी सब लोग देख पाएंगे. ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, लोकल होस्ट में बनाते हैं,
ये चीजों को सबको कैसे दिखेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड के सबको कैसे दिखेंगे, वो एक पर्टिकुलर यूआरएल के थ्रू या एक सर्वर में उसको कैसे डिप्लॉय करना होता है, फिर उसको उसका लॉग वगैरह कैसे चेक करना होता है, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे डिप्लॉयमेंट में। फिर एक एजाइल, तो बेसिकली ये एक मेथोडोलॉजी है जो सारे कंपनी यूज करते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहिए। कॉलेज प्रोजेक्ट में भी 1 महीना दे दिया, 1.5 महीना दे दिया, प्रोजेक्ट तैयार हो गया, मैंने दे दिया कॉलेज को। पर एंटरप्राइज लेवल पे क्या होता है कि 1 साल लगेंगे एक पर्टिकुलर चीजों को बनाने के लिए, क्योंकि वो एंटरप्राइज ग्रेड का है। तो कैसे हम उसको डेवलप करेंगे, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी होता है। ये सारे प्लानिंग्स वगैरह कैसे वो प्लानिंग किए जाते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होता है ना, जब इंटर्न्स आ गए या फ्रेशर्स ज्वाइन कर लिया, उनको एजाइल का नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। एजाइल का जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है उसका नाम है स्क्रम, ये एजाइल का एक पार्ट है, ठीक है, एक टाइप है। तो कुछ आता नहीं है, तो क्या आता है कि ये वो स्पून फीडिंग करना होता है कि अरे ये ऐसे हम लोग प्लान करते हैं, और सब लोग जो टीम मेंबर सोचते कि अरे एक के लिए जो है पूरा टीम का प्लानिंग बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग वो प्लानिंग वगैरह करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा, डेफिनेटली और भी कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग चीजें होंगे जो कोर्स में एनरोल होने के बाद ही पता चलेगा। कि आप ये बता रहे हो कि एक ट्रैक चूज करने के बाद उस ट्रैक को आप एक ट्रैक चूज करते हो, उसके साथ साथ जैसे हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लर्न पाइथन एंड स्टफ विदाउट नोइंग कि पाइथन सीखने से सिर्फ बात नहीं बनेगी, यू हैव टू लर्न द एंटायर सेट, तो आपको बात बनेगी। और उस सेट में आपका लिनक्स, रिएक्ट, एससीवी, डिप्लॉयमेंट अगर ये सीखा जाए तो आपकी तुलना टीयर 1 कॉलेज के इंजीनियर से की जाएगी, एंड यू कैन ऑल्सो गेट इनटू कंपनीज जो शायद आप सोच नहीं रहे थे कि मैं इन कंपनीज में जा पाऊंगा, बट नाउ यू हैव ऑल द एबिलिटीज along with your degree to get into those companies, right? Yeah. Okay, let's go to the next point, Tanvi. What is the future of full stack development? Yeah, I think by now we more or less understand that this is the future, but let's substantiate our information with some data. Yes, Pranveer, what is your राइट, सो take on that डेटा from an से हमें industry दिख रहा है कि ये कितना पॉपुलर है, ठीक है। कि एक्चुअली ये टर्म जो फुल स्टैक डेवलपमेंट, इसका स्टार्ट ही हुआ था अराउंड 2014-13 के आसपास, ठीक है। उसके भी पहले, और ये उस टाइम है जहां पे ये लेटेस्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, बैक एंड फ्रेमवर्क, इस टाइप के चीजें निकल के आए, ठीक है। पहले क्या होता था, ऑलमोस्ट 90% ऑफ वेबसाइट या 80% वेबसाइट इधर पीएचपी और एएसपी इन दोनों में बनाए जाते थे, ठीक है। जहाँ पे मेंशन्ड है कि भाई ऐसे ही बनाना है, पीएचपी के अंदर ही एचटीएमएल का टैग्स रहेंगे और पेज बन गया, वेबसाइट बन गया। जो डायनामिक वेबसाइट के लिए, स्टैटिक वेबसाइट सिंपल एचटीएमएल। अब ये फ्रेमवर्क का क्यों जरूरत हुआ, और फिर ये फुल स्टैक का पार्ट क्यों आ गए। अभी जो फ्रेमवर्क का कंसेप्ट आ गया कि मैंने बैकएंड वाला जो ये पीएचपी का एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, ये पीएचपी है जिसका बेसिक सा है कि बहुत सारे चीजें स्क्रैच से करना हो रहा है। अभी कंसेप्ट आ गया कि हम इसका एक पैकेज बना देते हैं फुल्ली लोडेड, कि भाई जो कॉमन स्टफ है वो पहले से लिखा हुआ रहेगा। मान लो ऐसा एक कॉमन फंक्शन है, ठीक है, जो बहुत सारे ऑलमोस्ट हर एक जगह पे यूज होने वाला है, और हर एक वेब एप्लीकेशन में ये कॉमन से चीज है। सारे के सारे चीज को पैक कर दिया, एक बंडल बना लिया, आप इसको यूज करो, तो आपको ये जो चीज है, फंक्शन जो लिखा हुआ है, वो बार बार आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से होंगे, और ये ऐसे बनाए जाएंगे जो बेस्ट प्रैक्टिस है, उसके बेसिस में ये फंक्शन उस तरीके से ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने और भी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का क्रिएट हुआ। सेम आ गया फ्रंट एंड के कंसेप्ट कि जावास्क्रिप्ट जो ये खुद ये भी बहुत ही पावरफुल चीजें हैं फ्रंट एंड, क्योंकि फ्रंट एंड में सिर्फ जावास्क्रिप्ट रन हो सकता है। इसको और कैसे यूटिलाइज किए जाए, कैसे हम वेब एप्स को और स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम एक बैकएंड को मल्टीपल फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि नेटफ्लिक्स ले लेता हूं एग्जांपल। नेटफ्लिक्स का मेरा अकाउंट है, मेरे पास मोबाइल ऐप भी है, वेब वाला व्यू भी है मेरे पास। मैं वेब में कुछ वीडियोस वगैरह दिखे, क्लोज कर दिया, फाइन। अब मैं जब मोबाइल पे भी देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पर सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गया कि आपका रिसेंट वीडियोस जो है आपने ये चीजें दिखे थे। अब नॉर्मली दिमाग में क्या आता है, नॉर्मली मोबाइल जो है, मोबाइल का डेटाबेस तो मोबाइल के अंदर ही है, नेटफ्लिक्स का वेब पार्ट है, उसके पीछे उसका बैकएंड है। इसको कैसे पता चला कि वहां पर क्या हुआ था, या सेम फेसबुक के वहां पे। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये तब भी पॉसिबल होगा जब
जब को पूरा चीजों का नॉलेज हो जाएगा कि भाई कैसे ये डेटाबेस वर्क करता है, कैसे एपीआईज वगैरह वर्क करते हैं, कैसे मोबाइल फ्रंट एंड वर्क करते हैं, कैसे बैक एंड वेब फ्रंट एंड काम करते हैं, ये सब चीजें, तो धीरे धीरे फुल स्टैक डेवलपर का कंसेप्ट जो है बहुत इंक्रीज हो गया, हम बहुत डिमांड होना शुरू हुआ कि हमें ऐसा चाहिए जिसको सब कुछ आता है। क्योंकि पहले क्या होता था, मुझे चाहिए डेटाबेस एक्सपर्ट जिसको क्या आता है, सीक्वल, खतरनाक तरीके से सीक्वल आता है, बट उसको वो ये मालूम नहीं है कि बैकएंड को क्या चाहिए, क्योंकि उसको तो सिर्फ डेटाबेस का नॉलेज है। सेम जो बैकएंड डेवलपर था, उसको ये मालूम नहीं था कि डेटाबेस से क्या क्या चीजें पॉसिबल होंगे, क्या क्या चीजें फ्रंट एंड को देना है, उसका नॉलेज नहीं है उसके पास। सेम फ्रंट एंड डेवलपर भी। तो इसीलिए हर एक कंपनी जो है, यही है, अभी ये क्वेश्चन अभी है जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्यों कंपनी प्रेफर करते हैं, यही एक्चुअली मैं बोल रहा हूं अभी, कि कंपनीज को वही चाहिए कि जिसको सब कुछ आता है, ताकि एक टीम पे रह के काम कर पाए और एक दूसरे को समझ पाए कि कैसे करना है। इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि पूरा नॉलेज। और मैं ऑनेस्टली एक चीजें बता देता हूँ कि जब आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, फुल स्टैक डेवलपर ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर विथ एक्सपर्टीज इन फ्रंट एंड और फुल स्टैक डेवलपर विथ एक्सपर्टीज इन बैक एंड। नॉलेज, फुल स्टैक का मेन फंडा ये है कि आपको नॉलेज रहना चाहिए कि कौन सा चीज है बाकी टीम वालों कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई आप फ्रंट एंड का हो, डेफिनेटली देखो सब लोग चाहेंगे कि भाई खुद काम कम करे, दूसरे पे जो है काम थोड़ा ज्यादा डाल दे। डेफिनेटली बोलेंगे कि नहीं मैं फ्रंट एंड हूँ, ये तो फ्रंट एंड से पॉसिबल ही नहीं होगा। बैक एंड वालों को अगर फ्रंट एंड के बारे में मालूम ही नहीं है तो डेफिनेटली वही होगा, नहीं नहीं ये सब कैलकुलेशन जो आप खुद बैक एंड में करके मुझे सिर्फ नाम दे दो, मैं सिर्फ नाम दिखा दूंगा और नहीं कुछ करने वाला मैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। बट जब फुल स्टैक हो जाता है, एक सबको सबके बारे में मालूम होता है, और सिर्फ ये नहीं कि काम वो कम करने के लिए ही होता, ये नहीं है, समझ पाए कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कि मैं सेम कैलकुलेशन हो सकता है मैं बैक एंड में भी कर सकता हूँ, हो सकता है इक्विवेलेंट कैलकुलेशन में फ्रंट एंड में कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेट मुझे क्या इंटरफेस में क्या दिखा वो मैटर करता है, कौन सा वाला बेस्ट प्रैक्टिस है, बैक एंड में कर लेना या फ्रंट एंड में कर लेना। तो ये सब चीजें जो इसके लिए फुल स्टैक का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ मेरा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारा आर्टिकल भी है। कुछ दिन पहले अमेजन के जो सीईओ है वो भी सेम काइंड ऑफ बोल रहे थे कि वो प्रेफर करते हैं कि एक टीम पे मैं 10 एक्सपर्ट लेके बैठ गया जिसमें 3 बैकएंड, 3 फ्रंट एंड और 3 डेटाबेस वाले, एक टेस्टर ले लिए, इससे बेटर है कि मैं 5 फुल स्टैक ले लूं जिसको सब आता है और प्रोडक्ट और भी जल्दी बन जाएगा, डिलीवर कर सकते हैं। तो डिमांड बहुत ही ज्यादा है और भी नहीं, बहुत सारे रीजन है, कॉस्ट कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सी सिंपली अगर आपको कंपनी अगर 50,000 पे कर रहा है, मतलब कंपनी आपको यूज करके 1 लाख के रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, ठीक है, ये फंडा है नॉर्मल, ठीक है। तो फुल स्टैक इजिली समझ सकते, 10 की जगह पे मैं 5 यूज कर लिए, ठीक है, और मेरा काम हो गया, जल्दी तैयार हो गया, तो डेफिनेटली सब लोग तो लेंगे ही फुल स्टैक वालों को ही। So, Pranbir, what you're saying in simple language, I'm sure आपने भी इसको बहुत सिंपल बनाया है, मैं जस्ट पैराफ्रेज कर रहा हूं दोबारा, एंड वी आर स्लोली मूविंग इनटू द लास्ट जोन ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। वो ये है कि एक फुल स्टैक इज अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, एंड which is the need of engineer, whether the engineer आप कंप्यूटर साइंस में हो तो भी इंटरडिसिप्लिनरी चाहिए, आप मैकेनिकल में हो तो भी इंटरडिसिप्लिनरी चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। सेकंड, फुल स्टैक इज अ स्किल बेस्ड अप्रोच। सिर्फ नॉलेज होने से बात नहीं लगेगी, आपने उस नॉलेज को कैसे अप्लाई किया, दैट इज ऑल्सो इज गोइंग टू बी एज इक्वल एज इंपॉर्टेंट इन एनीथिंग। जो हम I was talking to students in the last session in KDK college only, where I told two things. Today we have to have a skill based learning, and second we need to have an interdisciplinary approach. This is exactly what you are talking, keeping computer science as the background, correct? Right. But very well said, Pranbir. How industry is looking into full stack, how industry is looking, why full stack is so important, and and finally, as you said, what Jeff Bezos said as far as the Amazon example. Yes, I think all top companies, forget about the Amazons or the Facebooks of the world, even a technology company like Skill Edge, an ed tech company like Skill Edge is looking for full stack, right? At the end of the day, Right. yeah. So I think very pertinent point, Pranbir, and thank you for sharing that in a very simple language. I think this point is something which is self-explanatory, but I think this defines, Pranbir, what you said.
mentorship is important for somebody to develop interest in the entire ecosystem of full stack. The student must love the technologies. Then only you can learn and apply. And yes, at the end of the day, you need to practice. Without practice on real world examples, live projects, this kind of knowledge and converting that into skill will not be possible. So the love for the technology, the mentorship, very, very important, and definitely the practice on live projects. Correct, Ranveer? Right. Yes. Right. Let's go ahead. So let's come to our last segment of presentation, where we are talking about jobs, salaries, and the preparation mindset. All right. I think this slide is what I would like to highlight. That how do you basically become ready? When I say ready with respect to cracking the interview of a full stack developer and become day one job ready, where you know that you are able to deliver output without much training as far as the company is concerned. So the stage one is basically knowledge, and we spoke about that. From knowledge, then that interdisciplinary approach, the front end, the back end, database. Then there comes a practice. So the knowledge, interdisciplinary approach, and the practice. So we call it academic-based skilling. And finally, mentorship. Then only you become more than 90% ready to crack the interview and become day one job ready. I think that's the kind of stage-wise learning you and I have been talking, how a student can learn and become full stack developer. In this particular phases only, a student can really be ready to crack the interview and ready to deliver results in the company from day one. Any pointers on that? Right. Whatever you said is absolutely correct. Okay, makes sense. Makes sense. So, Pranjit, I think this is something, if you like to highlight this, it's a comparison between a conventional developer and a full stack developer. If you can highlight this point, how does the industry look like, and okay, which will come across very clearly to all our fresher engineers. Okay. So यहाँ पर मैं conventional developer means मैं C++ developers को मैं ले रहा हूँ, और अदर साइड में मैं क्लाउड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर या पाइथन डेवलपर, मैं इन सब चीजों को ले रहा हूँ जो ट्रेंडी है मोड. ठीक है. फर्स्ट है कि द नंबर ऑफ ओपनिंग्स, मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे C++ में दिखा था 68 ओपनिंग है, बट मुझे दिखा कि पाइथन या फुल स्टैक इसमें 1065. ओके, इतना सारा ओपनिंग दिखा. सो ह्यूज डिफरेंस है इसमें. ठीक है. द सेकेंड थिंग पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि स्टार्टिंग सैलरी. अब C++ तो सबको आता है अभी. ठीक है. कॉलेज जिसको जो भी कॉलेज पास आउट हुआ है C++ आता ही है. सो डेफिनेटली कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, उल्टा डिमांड कम है, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग सैलरी जो है वो कम होगा, क्योंकि अगर आपको नहीं जम रहा है ये सैलरी से, और भी बंदे हैं लेने के लिए. ठीक है. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रियलिटी की बात है. ठीक है. बट पाइथन, फुल स्टैक, क्लाउड, इन सब का क्या स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा होते हैं. क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि डिमांड है. ज्यादातर कंपनी ये ये यूज कर रहे हैं अभी, बट सप्लाई नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट कॉलेज से निकले हैं उनको तो सिर्फ जो बुक्स में जो टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखा हो वो मालूम है, C++, जावा. ठीक है. और क्या उनको अगर जावा तो क्या उनको स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में मालूम है? स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, ये सब आते हैं. पाइथन रेयरली आता है, और अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग जो कॉलेज के जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो ML पे बना रहे हैं, तो पाइथन का नॉलेज है. बट क्या पाइथन का जो लेटेस्ट ट्रेंडी फ्रेमवर्क, अगर मैं फुल स्टैक का बात करता हूँ, क्या उनको जैंगो के बारे में मालूम है, या फ्लास्क या फास्ट API? ओके. उन लोगों का क्या क्लाउड, क्या AWS का या GCP का या एज्योर, जो क्लाउड टेक्नोलॉजीज है, क्या इनके बारे में मालूम है? क्योंकि सिर्फ ये क्लाउड, अगर मैं AWS का बात करता हूँ, सिर्फ वो एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है. ठीक है. जहां से मैं वर्चुअल मशीन लॉन्च कर सकता हूँ, मैं डेटाबेस इंस्टेंस लॉन्च कर सकता हूँ, कुछ भी सिंपल से ये चीज है. बट उसका UI जो, क्योंकि वो लोग इतने सारे सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो ये UI को कैसे संभालना है, अगर ये नॉलेज भी होता है तो आपको ज्यादा पेमेंट दिया जाता है. ठीक है. और इसके ऊपर भी सर्टिफिकेशन कोर्स है कि आप वो वेबसाइट को कैसे चलाओगे. ठीक है. इस लेवल का वो होता है कि क्लाउड भाई अब सिर्फ इतना सा नॉलेज तो एटलीस्ट लेके आओ ताकि मैं आपको ज्यादा पे करूं. ठीक है. तो अगर ये सब नॉलेजेस अगर है
फुल स्टैक का कंसेप्ट, क्लाउड का कंसेप्ट, पाइथन नॉलेज, सो डेफिनेटली स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत हाई होता है क्योंकि डिमांड है बट सप्लाई नहीं मिल रहा है यहाँ So पे. it's like a very classical supply demand concept. C++ राइट में demand is low, supply is high. So at the end of the day, the pricing becomes on an average low. But on the other side, the demand is so high, but the supply is not that much. And that's राइट why, as you are saying, the starting salary and the growth eventually in that career path is humongous. राइट. तो इसलिए क्या करते हैं, जो मास रिक्रूटर भी हो या कोई भी कंपनी अगर ले लेते हैं, मान लो सी प्लस प्लस जावा वालों को ही, फिर उसको 6 मंथ या 8 मंथ की ट्रेनिंग करवाते. ठीक है कि भाई आपका एटलीस्ट सी प्लस प्लस सी इसलिए लिया जाता है कि उसका एल्गोरिदम स्किल है. ये देखे सी प्लस प्लस देख के नहीं कि उसका एल्गोरिदम स्किल है, तो इसीलिए चलो इसको ले लिए. अब उसको ट्रेनिंग करवाते एक्चुअल एंटरप्राइज के जो टेक्नोलॉजी है उसमें, फिर उसको काम पे लिया जाएगा. इसका मतलब अगर कोई वही चीज 6 महीने पहले से ही सीख के कंपनी में जाए, सो वो बेसिकली शुरू में ही सैलरी ज्यादा होंगे. करेक्ट. और वो अपना करियर किसी से 8 महीने पहले शुरू कर रहा है, एंड ऑब्वियसली द लॉन्च पैड विल बी हायर. करेक्ट. राइट राइट. क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत सारे देखे. इवन मैं कुछ इंटरव्यू ले रहा था कुछ मोबाइल ऐप्स डेवलपर को, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला अच्छा आपने क्या क्या ऐप्स बनाए, आप मुझे बस थोड़ा शोकेस करो क्या क्या बनाया. तो उसने बोला कि मैंने ये ऐप बनाया, ये ऐप बनाया. मैंने बोला ओके कौन सा टेक्नोलॉजीज यूज किया है, पहले गए वो. दूसरे एक आए जो बोल पाए कि टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज किया है. उन्होंने बोला कि मैंने डेटाबेस के लिए जो मैंने फायरबेस यूज किया है, जो डेटाबेस एज अ सर्विस काइंड ऑफ है. ओके अगर मैं आपको इसके जगह पे मैं बोल देता हूँ कि मैं आपको PostgreSQL डेटाबेस दे दूं, क्या आप बना पाओगे इस ऐप को? एक ने भी जो है नहीं बोल पाए कि हाँ मैं कर पाऊंगा. क्योंकि कोर कंसेप्ट नहीं, उनको मालूम है कि फायरबेस से सिर्फ यूज किया जा सकता है. बट ऐसा नहीं है, किसी भी एंटरप्राइज गिट का चीज इसमें आई मीन ये कोई ब्लॉकर ही नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही डेटाबेस को इसी में यूज कर पाऊंगा. तो वो कोर कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जिसलिए मैं ये एवरेज टाइम मैं मान लेता हूँ 10 LPA जो है वो एक स्टेबल इनकम है, मैं मान लेता हूँ. तो अगर C++ है वो अराउंड 5 से 6 साल लगा देंगे ये 10 LPA टच करने के लिए. ठीक है, क्योंकि इसका मेन रीजन है कि स्टार्टिंग सैलरी ऑलरेडी लेस है. ठीक है, और पाइथन फुल स्टैक इन सब में अगर मैं देखता हूं तो 3 से 4 साल इनफ है 10 LPA टच करने के लिए. Makes sense, Pranveer. Makes sense. So what you're telling me, what you're telling all the people over here is very clearly supply demand concept. And the second point is the importance again with respect to salary and the lookout of the industry, the importance of learning this full stack. Right. I think this is the last slide for every student. I told you we will finish in 35 minutes. That's exactly what we are doing. Let me put this point across to everybody. When you develop the mindset of full stack, you need 500 plus hours of learning. So it's basically a 5 to 6 months of learning. That's how students are learning in Skill Edge. You put 100 plus hours in projects, mini projects, tutorials, quizzes. Then you do 4 plus industry grade projects. Projects not with respect to any management system, not attendance management system, not, those typically what happens in the college. Project of the level of creating a video conference call like Zoom, for example, right? And that kind of projects is what the industry is looking for. And when you make such kind of projects, you basically apply your entire front end, back end, and database kind of knowledge. Yes, your mentorship is important, very, very important. It is easy to learn. The information is very easy. You can go to the YouTube and you can get all the videos, but nobody in the YouTube telling you how those videos or how those learning can be applied. And that's a gap. That's a big gap that we have. And that's how students are learning in Skill Edge. करना चाहूंगा जो ये है कि किसी भी YouTube के ट्यूटोरियल या Udemy के या कहीं पर भी जो ट्यूटोरियल है, कहीं पर भी ये नहीं दिखाए जाएंगे कि जो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें उसका कुछ गलती हो रहा है. बट एक्चुअल में ये नहीं होता है. वीडियोस दिख जाएंगे कि किसी ने एक नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दिया सिर्फ 1 घंटे में या 1.5 घंटे में, बट एक्चुअल में ये होता नहीं है. ठीक है, इंडस्ट्री में जब एक्चुअल डेवलपमेंट करने बैठेंगे बहुत सारे एरर आते हैं, बहुत सारे इशू कि भाई ये कहाँ से आ गए, ये क्यों आ रहा है. तो उस टाइम पे हमें जो क्या है ना कि R&D करना होता है कि गूगल में कि भाई कैसे इसको सॉल्व करना है, इस टाइप का अगर एरर आ रहा है तो कैसा करना है. ये चीज ना YouTube में दिखाएंगे या Udemy या किसी भी साइट में वो नहीं दिखाएंगे.
क्योंकि इसका एक थॉट में भी ये हो सकता है उन लोगों को ये लगेंगे भाई ये कैसा मेंटर है जिसको आता नहीं है, इस टाइप का कुछ थॉट्स ना आ जाए स्टूडेंट्स को, इसीलिए वो ऐसा दिखाते हैं कि जो मेंटर है वो इंस्टेंटली वो कर देते हैं। अगर वैसा एक्चुअल में अगर वो होता तो कोई भी एक सिंपल सा भी, जब अब इंडस्ट्री में आओगे तो आपको दिखेंगे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, अगर कोई ई कॉमर्स साइट बनाने का भी अगर प्रोजेक्ट देखे गए तो अराउंड 6 मंथ to 8 मंथ दिए जाते हैं, बट यूट्यूब के ट्यूटोरियल में तो ये 1 घंटे में बन जाते हैं या 2 घंटे में बन जाते हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं है। तो वहां पर बहुत सारे चीजें होते हैं जो कट कर दिया जाते हैं। बट इसमें क्या होने वाले, ज्यादातर लाइव क्लासेस है, तो एरर्स जो है वो दिखेंगे कि ये एरर्स है तो मुझे ऐसे इसको डिबग करना है, ऐसे सॉल्व करना है। वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट वो नहीं दिखाते किसी भी पार्ट, बट हम यहाँ पर वो भी दिखाने वाले हैं। और कॉलेज के इसमें हम लोग जब हम अपने रिज्यूमे बनाते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं कि हम कॉलेज में क्या किए, हम लोगों ने समथिंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट या वो मैनेजमेंट, या फिर कैरेक्टर डिटेक्ट करने वाले एमएल के प्रोजेक्ट, सिर्फ ये कॉमन है, ठीक है, यही बनाते जा रहे हैं सब, ठीक है। यहाँ पर क्या किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाने वाले, एक्चुअल फ्लिप नेटफ्लिक्स क्यों ना बनाते, एक्चुअल जो हम लोग ये वीडियो कॉल कर रहे हैं ये क्यों ना बनाते थे, जिसको हम वेब आरटीसी वाला एक टेक्नोलॉजी है वो यूज करने वाले, एंड टू एंड एनक्रिप्ट होगा जो व्हाट्सएप होता है, उस टाइप का क्यों ना कुछ बना देते हैं। तो जस्ट इमेजिन इस टाइप के प्रोजेक्ट अगर आपके रिज्यूमे पे हो जाएंगे तो प्रोजेक्ट देख के सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि जो इंटरव्यूअर है वो सीधा वो प्रोजेक्ट में आएंगे कि ये प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया, और सिर्फ इतना सा ही एनफ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। Makes sense. Makes absolute sense. And one important point I want to highlight over here, Pranbir, is the soft skill preparation. Right. मैंने ये हमेशा बोला हुआ है और मैं दोबारा ये बोलूंगा, soft skill today spans from how do you build your digital resume, how do you crack your interview digitally, how do you make presentations digitally, how do you do professional email writing, time management, conflict management, client interaction, all those things are part of soft skill जो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ ये सीख के जाना है। और अगर आप ये इंटरव्यू में बता पाओ कि ये आपने सीखा है, then it's an added advantage and definitely you are differentiator from any other student who is taking the same interview. Exactly. So guys, I think what all things we have learned today. So just quick revision. Pranbir, thank you for making the thought so easy and so simpler, to all of us, including me, as always when you do with the technology. So now what we have learned, we have started learning from what is a full stack. We have learned the importance of why full stack. We have learned what is the stack introduction. Then how learning full stack is helps the individuals, and how do you develop that interest of full stack. Then what is the chosen track, what is the most common chosen track, and with that what all things you can learn within the skill edge ecosystem. What is the preparation mindset that you need to have, and a comparison between the regular trend and the full stack developer as a career option, right? Once again, it is the love of the technology that makes you move in the full stack development zone. So as a computer science individual, if you love technology, then you have one path, which is the full stack development. If you love data, then you have the analytics part, right? जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी. So analytics is definitely on the data side. The full stack is definitely on the web development side. That's the two most hot career paths that you can think about as a part of your employment, whether you are in third year or whether you are in final year. Right. और एक चीज मैं अच्छा हुआ रोहित अभी अपने वो डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट भी बता दिए। हमारे इस कोर्स में ये जो हम लोगों ने ये पाइथन जंगो का ये जो पार्ट हम लोगों ने यूज किए, इसके पीछे और एक रीजन था एक्चुअली, जो ये है ये कंसेप्ट कि हम मशीन लर्निंग को कैसे या डेटा एनालिटिक्स किसी भी चीज को कैसे वेब में डाल देते हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स अगर कुछ पर्टिकुलर चीजें रिकमेंड कर रहा है, या फेसबुक अगर पर्टिकुलर फ्रेंड सजेशन दे रहा है, कैसे दे रहा है, वेब में वो कैसे काम कर रहा है। अभी तक ज्यादातर हम लोगों ने क्या किया कि जब भी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैमरा खोल लिए, कुछ कैरेक्टर दिखा दिए, कैमरा में दे दिए, वो वेब में कैसे होगा, वो कैसे। इसके पीछे भी हम लोगों ने ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है हमारी इस बनाने के लिए कि अगर आपको लेट से दोनों में इंटरेस्टेड है हो आप, अब ऐसा हो सकता है अगर आप बाकी किसी भी एक स्टैक में जाओगे तो वो
फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके पीछे भी ये स्टैक चूज करने के पीछे ये भी एक रीजन था, ठीक है, ताकि हम ये कर पाए कि आपने डेटा एनालिटिक्स से बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत इंटरेस्ट है, फुल स्टैक का भी बहुत इंटरेस्ट है, दोनों को एक क्यों ना कर देते हैं। इस टाइप के थॉट्स भी थे। Makes perfect sense, Pranbir, and thank you for sharing that thought with us. So I think that's what I would say. Let us start our journey. Those who want to follow us on our social media के links यहाँ पे दिए हुए हैं. Skill Edge official. Pranbir and other people also put their articles, posts in these places. So आप जितना follow करोगे उतना सीखोगे. These are absolute real time industry information coming in a language which is easier for you to understand, in a language which is easier for you to comprehend, right? This is my last slide. As always, I always talk about this as we go along, which is passion is never enough, neither is skill, and that's what it is, right? We definitely cherish the support in our journey of redefining skilling. I must say thank you to Pranbir once again. Pranbir, it has been absolute pleasure to listen to you as always, and I must thank KDK management to begin with, Principal Sir, Vice Principal Sir, Dr. Devendra Hole Sir, to giving us this opportunity. And last but not the least, I think students who have been here, we are happy to answer any query right now if you have. We are done from our side. I hope you learned a lot from what we shared, what we discussed. But the point over there is, अब information sessions को use करने का वक्त आ गया है, अब सीखने का वक्त आ गया है. Then only you can see the difference when you stand in front of the recruiter as far as your journey is concerned. Right. So Pranbir, once again, thank you so much. I must let's have the if any questions from any of the students, we are happy to answer. मैंने पहले भी कहा हुआ है, अगर आपको one on one बात करना है तो आप सोशल मीडिया में पिंग करिए. आपके काफी स्टूडेंट्स ने पहले किया हुआ है. वी आर हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस. आपको अगर किसी के बारे में बात करना है, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, सॉफ्ट स्किल के बारे में कुछ भी बात करना है, हैप्पी टू आंसर द क्वेरी. इफ यू कैन पिंग मी ऑन सोशल मीडिया. अगर यहाँ पे कुछ पूछना है पूछ सकते हैं. Pranbir sir is there with us and we are happy to answer. Devendra sir, we are done. Indranil, we are done from our side. Any comments, anything, be helpful. Thank you, sir. Actually, as I am not from the computer background, but I also understood what is full stack, how the programming or something has been done in it. So I request students, if they have any questions, they can ask, or they can follow the Rohit courses, their Skill Edge Academy on different social media platforms, so that they will get benefited, and it is easier for me to place them also. Correct, absolutely, very true. लगकर आधा फर्क पड़ेगा नहीं, वो आज के दिन में फर्क पड़ेगा, but जब आप कल से फिर से सोचोगे, you go back to your normal regular trend. You have to be very careful that every student in India, not every, but that the students in India are learning these things, and the students who are part of colleges such as yours in different states. So आपको अगर, क्योंकि recruiters तो उतने ही हैं, colleges ज़्यादा हैं, recruiters उतने ही हैं. You got to realize that. So recruiters जब ये full stack निकाल रहे हैं requirement, and if you love technology, I think this is the time to learn and express yourself. That would be my final suggestion and advice from my side. And I hope, Pranbir, you also resonate with the same thought. Yeah, correct. Right, sir. If there are no other questions, we are done from our side. Let me know if you have anything to say or. Sir, I will say thank you for arranging the informative sessions. You arrange from data analytics, full stack development, mechatronics, and I hope that student will get benefited from such forums, and they will learn something which is differentiate them from the others. So Correct, I thank Rohit sir, Pranbir sir, and Indranil sir, because ultimately the man who behind this scenario is Indranil sir. He has arranged all the things. No, absolutely.
Absolutely. Indranil, you have been that's what they generally happen. You know what? Force is not seen, right? What is seen is only the push or the pull. But the force behind that push and the pull is not seen. So you can always imagine the importance of yours, Indranil. Yours and Dr. Hole's importance is just too much because आप लोग के एफर्ट से ये सक्सेसफुल हो पाया एंड जैसे सर ने शुरुआत में कहा था, बदर सर ने भी कहा, Singh sir ने भी कहा, we would love to keep on doing this collaboration at a more structured manner so that the students start learning and start experiencing the change, which obviously will make your job easier, sir, for making the students placed in some of the top companies in India. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Rohit sir. Thank you, Pranveer sir. Thank you all the KDK management, principal sir, vice principal sir, and a special thanks to Devendra Hole sir, because without your effort, how you coordinate all these things, it's absolutely awesome. So thank you so much, sir, and definitely we will do a collaboration with you and make your students an employment ready. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, students. Thank you, everybody. Thank you for joining in. Stay safe, happy learning, and happy skilling. Thank you.